Philip makes some patterns by linking squares with rods. Here are some of the patterns she make. First pattern, there are 2 squares and 9 rods. Second pattern, there are 3 squares and 12 rods. Third pattern, there are 4 squares and 15 rods. How many squares are there in the 40th pattern? Please note that first pattern there are 2 squares, second pattern 3 squares, third pattern 4 square, fourth pattern 5 squares. So number of squares is 1 greater than the pattern. So there will be 41 squares. How many squares are there in the nth pattern? N plus 1. How many rods are there in the nth pattern? Please note, in the first pattern there are 9 rods, in the second pattern there are 12 rods, in the third pattern there are 15 rods. So first term is 9, common difference you can observe is 3. So Tn is a plus n minus 1d, a is 9, n minus 1, common difference is 3. 9 plus 3n minus 3, 3n plus 6. So 3n plus 6. How many rods are there in the 40th pattern? So 3 into 40 plus 6, 126. I hope this is clear. It was a very simple question. Next question that you have asked me is question number 27. Consider the pattern. Write down the 7th line in the pattern. Please observe करें. 1 square minus 0 square is 1, 2 square minus 1 square is 3, 3 square minus 2 square is 5, 4 square minus 3 square is 7. बजाय तो पहली टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर है, लेकिन कुछ ऑब्जर्व करें, कोई सीक्वेंस बन रही है, गौर से देखें. 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7. तो 7th पैटर्न क्या होगा? 7th लाइन इन द पैटर्न 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. 7 प्लस 6 13. चेक कर लो, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36. द रिजल्ट इज 13. सिमिलरली 143 स्क्वायर माइनस 142 स्क्वायर. अगर मैंने ये ट्रिक आइडेंटिफाई नहीं करी होती तो मैं मेहनत से 143 का स्क्वायर निकालता, फिर मेहनत से 142 का स्क्वायर निकालता, फिर माइनस करता. ट्रिक ऑब्जर्व कर ली तो 143 प्लस 142, द रिजल्ट इज 285. I hope everyone is clear. Write down the integer value of x and y which satisfy the equation. Observe करें, ये टर्म इससे एक ज़्यादा है. 101 को आधा करो तो 50.5 होता है, यानी ये टर्म 51 हो जाएगी, ये टर्म 50 हो जाएगी. 51 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इज 101. आई होप आई एम क्लियर. सो x इज 51, y इज 50. ऑब्जर्व किया, खुद ही समझ में आ गया कि कैसे सीक्वेंस सॉल्व हो रही है. Next question that you have identified is question number 29. In question number 29, you are told that the diagram shows first 5 of a sequence of figures. Figure 1 just contains 1 square. Figure 2 contains 1 2 by 2 square and 4 1 by 1 square. Figure 3 contains, आपको सारी बातें बता दी, आपको बोला complete the table. चलें, let's find out. 1 plus 4 5, 1 plus 4 plus 9, that is 14. 1 plus 4 plus 9 plus 16. नोट करें, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो 30. Figure 5, 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, that is 55. Another figure in the sequence contains a total of 285 squares. Which figure is that? So इसको कंटिन्यू कर दें, खुद ही जब 285 आंसर आ जाएगा तो आ जाएगा. फिगर 6 is 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36. So 55 plus 36 is 91. Figure 6,
Figure 7, 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49. I hope सब follow कर रहे हैं. So 91 plus 49 is 140. Figure 8, 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49 plus 8 का square is 64. 140 plus 64 is 204. Figure 9 is 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49 plus 64. 9 का square is 81 plus 81 that is 285. हमें 285 बताना था कौन से फिगर पे आ रहा है. So the answer is figure 9. I hope I'm clear. So this is question number 29. The next question that you have asked me is question number 31. Question number 31 is a sequence of rectangle was drawn. In each case the length and the width were exact. Number of centimeters more than the width. Sahi. The area and perimeter of each of the first 4 rectangles were calculated and results were recorded in the table. Calculate the width and the rectangle of the sequence in which area is 132. आप नोट करें विड्थ और लेंथ में एक का फर्क है, यानी अगर लेंथ विड्थ अगर x है तो लेंथ x प्लस 1 है. सो लेंथ इंटू विड्थ इज एरिया. x इंटू एक्स प्लस 1 इज 132. अग्री. तो हम देख के भी बता सकते हैं कि 11 इंटू 12 132 होता है. 11 इंटू 12 132 होता है. लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज 0. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज 0. एक्स प्लस 12 माइनस 11 एक्स प्लस 12 इज 0. x is 11, x is minus 12. I hope everyone is following me. Calculate the width and length of a rectangle in a sequence which is a perimeter. Perimeter is 2, length plus width is 50. Agree? वैसे तो हम ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि एक 13 होगी एक 12 होगी, तो 13 और 12 मिला के होती है 25 और दो साइड्स तो 50 हो गई. लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. लेंथ इज x प्लस 1, विड्थ इज x इज 50. 2 इंटू 25, 2x प्लस 1 इज 25, 2x इज 24, x इज 12 एंड विड्थ 12 हो गई तो लेंथ 12 प्लस 1 13 हो गई. आई होप आई एम क्लियर. दैट इज इट. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 31. नेक्स्ट आपने 32 पूछा है मुझसे. क्वेश्चन नंबर 32. The table below refers to certain series. Study the table and then fill in the blank spaces. ठीक है जी. So the first is sum of the series. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 is 21. Last term of the series is 5. Last term of the series is 6. x plus 1. लास्ट टर्म अगर x है ये x plus 1 तो ये 4, ये 6, ये 7 और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है. 3 इंटू 4 इज 12, 5 इंटू 6 इज 30, 6 इंटू 7 इज 42. आई होप दिस इज क्लियर. इसके बाद बोलता है देयर इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम्स इन S एंड द कॉलम्स इन P. दोनों में रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, नजर आ रहा है. P इज 2 टाइम्स ऑफ S. आप नोट करें P S का डबल है, या S इज हाफ P. जैसे दिल चाहे वैसे लिख दें, दोनों एक्सेप्टेबल है. एक्सप्रेस अ सिंपल रिलेशनशिप कनेक्टिंग S एंड P. ये नहीं बोला कि किसको सब्जेक्ट बनाना है, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं. P इज 2S या S इज हाफ P. यूज योर आंसर टू पार्ट B टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S व्हेन X इज 9. अगर X 9 है तो P 9 इंटू 10. देख लें P क्या है, X इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज 90. सो S इज हाफ P दैट इज 90 अपॉन 2 विच इज 45. समझ में आई बात.
कह रहे हैं अगर x 9 है तो s निकालो। अगर x 9 है तो ये 9 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 90, और s अभी हमने निकाला हाफ p है तो 45। उसके बाद वेरीफाई दिस बाय इवेल्युएटिंग। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 8 21 प्लस 8 3 6 10 15 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 9 45। तो वेरीफाई हो गया। यूज योर आंसर टू पार्ट बी टू इवेल्युएट दिस। अब इसमें लास्ट टर्म क्या है 80, लास्ट टर्म 80 है तो P क्या हो गया 80 इंटू 81 दैट इज 6480, और S इज हाफ P, हाफ इंटू 6480 3240। उसके बाद बोला सजेस्ट अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n। तो अगर लास्ट टर्म n है तो P इज n इंटू n प्लस 1 एंड S इज हाफ P, so S is half n plus 1. This is the formula. I hope I am clear. सिंपल ऑब्जर्वेशन चल रही है, सिंपल तरीके से काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो 44 है। Question number 44. A series of diagrams of shaded and unshaded small triangles is shown. The shaded triangles are those which have at least one side on the edge of the big triangle. All of the other small triangles are unshaded. Copy the table which shows the number of small triangles. Okay. पहले वाले में 3 शेडेड हैं, दूसरे वाले में 6 शेडेड हैं, तीसरे वाले में 9 शेडेड हैं, चौथे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 शेडेड है। अग्रीड। नंबर ऑफ अनशेडेड कितने होंगे? अगर टोटल 24 है 25 है तो आप नोट करें 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 6 3, 16 माइनस 9 7, 25 माइनस 12 13। कंप्लीट द टेबल 4 कर लिया। बाय कंसिडरिंग द नंबर पैटर्न्स इन योर टेबल कंप्लीट द डायग्राम 5। सो 3 3 3 का फर्क चल रहा है, ये 15 हो जाएंगे। ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 माइनस 15 21 हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स वाई एंड जी। सो अगर आप नोट करें ये कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है, सो बी का पार्ट 2 टी एन is a plus n minus 1d. Tn, a is 3, common difference is also 3. 3n, 3 plus 3n minus 3, which is 3n. So x is 3n. Check कर लें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. Perfect. Then column y, 1 पे 2 का स्क्वायर, 2 पे 3 का स्क्वायर, 3 पे 4 का स्क्वायर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ n प्लस 1 स्क्वायर, जो टर्म चल रही है उससे एक ज़्यादा स्क्वायर। सो ये हो गया y, ये हो गया x। z इज y माइनस x, सो z इज n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3n। z इज n स्क्वायर प्लस 2n plus 1 minus 3n. z is n square minus n plus 1. I hope everyone is following me. उसके बाद बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अनशेडेड स्मॉल ट्राइंगल्स इन डायग्राम 100। इन डायग्राम 100 का मतलब है n 100 है और नंबर ऑफ अनशेडेड चाहिए, तो n 100 है। अगर n 100 है तो x 300 हो गया, y 101 का स्क्वायर हो गया, 101 का स्क्वायर हो गया,
10201 और z y माइनस एक्स हो गया, दैट इज 10201 माइनस 300 9901। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा तरीका ये था कि आप इसको n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इज z, n इज 100, 100 स्क्वायर माइनस 100 प्लस 1 करते, तो 10,000 माइनस 100 प्लस 1, 10,000 माइनस 100 प्लस 1, उससे भी सेम आंसर आ गया। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किस तरीके से करना चाहते हैं पार्ट सी को। बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। आई होप आई एम क्लियर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 44। Next is question number 45. Each diagram in the sequence below consists of number of dots. Draw the diagram number 5 of the sequence. So diagram number 1 में 6 डॉट्स हैं, डायग्राम नंबर 2 में 10 डॉट्स हैं, डायग्राम नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट्स हैं। डायग्राम नंबर 4 में 1 2 3 4 5 एक ज़्यादा, तो डायग्राम नंबर 5 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप नोट करें 1 में 3 है, 2 में 4 है, 3 में 5 है, 4 में 6 हैं, तो 5 में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6। सो दिस इज डायग्राम नंबर 5। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। 1 में 6, 2 में 10, 3 में कितने डॉट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 में 18, 5 में 22। By considering the number patterns without drawing further diagrams, write down the number of dots in diagram 10 and diagram 500. प्लीज़ नोट करें कि कॉमन डिफरेंस चल रहा है, Tn is a plus n minus 1 d। फर्स्ट टर्म is 6, कॉमन डिफरेंस is 4, 6 plus 4n minus 4, 4n plus 2 is Tn. So write down the number of diagram that has 70 dots. So can I write down the number of dots there will be in diagram number 10? So n 10 हो गया, 4 into 10 plus 2 42। डायग्राम नंबर 500, n 500 हो गया, 4 into 500 plus 2, 4 into 500 plus 2 2002। Write down the diagram that has 70 dots, यानी Tn is 70, 4n plus 2 is 70, 4n is 68, n is 68 divided by 4, 68 divided by 4 is 17, so n is 17। I hope everyone is following me. Next, the number of dots in diagram n is x. So if I look into the equation, that is Tn is 4n plus 2, therefore Tn is x, 4n plus 2, x is 4n plus 2। I hope this is clear. Next question that you have asked me in the problems is question number 46. I hope this question was clear to all of you. I made the equation Tn is a plus n minus 1d, and then using that I solved all the further parts and made the question relatively simple. So next is question number 46. Question number 46 is, table shows part of a pattern of numbers and the sum of the numbers in each row.
राइट डाउन द वैल्यू ऑफ पी. प्लीज काइंडली नोट करें. Sum is 1. In row 2, the sum is 3 plus 5, that is 8. Row number 3 is 7 plus 9 plus 11, which is 27. Row number 4 is 13 plus 15 plus 17 plus 19, that is 64. Row number 5 will be 21, 23, 25, 27 एंड 29. जो सीक्वेंस चल रही है, दो 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 के फर्क से सारे ऑड नंबर्स लिख रहे हैं. 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, दैट इज 125. सो वैल्यू ऑफ पी लिख ली. उसके बाद मैंने रो 5 कंप्लीट कर दिया. हाउ मेनी नंबर्स अपीयर इन रो एन. रो एन में एन नंबर्स आएंगे. रो 1 में 1 है, रो 2 में 2 है, रो 3 में 3 है, रो 5 में 5 नंबर्स है, रो एन में एन नंबर्स होंगे. व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स. आप गौर करें, सीक्वेंस देखें. 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125. सो एन क्यूब. आई होप दिस इज क्लियर. द फर्स्ट नंबर in row n may be written as n square plus an plus b. By considering some of the numbers in the table and forming equations, find the value of a and the value of b. So to do part D, n square plus an plus b. सब फॉलो कर रहे हैं. सो रो 2 यानी n2 है, तो tn 3 है. सो 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b a into 2 plus b is 3. 4 plus 2a plus b is 3. b is 3 minus 4 minus 2a. b is minus 1 minus 2a. ये एक इक्वेशन आ गई. n अगर 3 है तो फर्स्ट टर्म 7 है, यानी tn 7 हो गया. अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, इसको मैं tn ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, राइट. So 3 square plus a into 3 plus b is equal to 7. 9 plus 3a plus b is equal to 7. b is 7 minus 9 minus 3a. b is minus 2 minus 3a. So ये दो इक्वेशंस आ गई. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. -1 minus 2a is -2 minus 3a. -1 plus 2 minus 3a plus 2a. 1 is minus a is minus 1. b is minus 2 minus 3 minus 1. b is minus 2 plus 3, that is 1. So the equation is such that a is minus 1, b is 1. So the equation is n square plus an plus b, n square plus an plus b. So n square minus n plus 1. Next, check your answers for a and b by considering first number in row 6. The first number in row 6, 29 के बाद पहला नंबर is 31. 31 आना चाहिए. Let's check. 6 square minus 6 plus 1. 36 minus 6 plus 1 is 31, which means that I have done everything absolutely correct. The next question that you have identified is question number 47. Question number 47. The first 4 terms of the sequence are this. First term 8 है. 13 minus 8 is 5. 18 minus 13 is 5. So common difference है 5 का. Automatically आसान हो गया. So 10th term निकालना है, तो tn is a plus n minus 1d. a is 8. n minus 1 common difference is 5. 8 plus 5n minus 5. 5n plus 3. So write down the 10th term. T10 is 5, 10,
plus 3, 53. The nth term is 5n plus k. Find the value of k. So k is 3. This is k. K is 3. Next is the nth term of another sequence is 7n minus 1. Find the value of the term of this sequence which is closest to 1999. 7n minus 1 is 1999. 7n is 1999 plus 1. 7n is 2000. N is 2000 upon 7. That is 285.7. So closest is 286th term. I hope everyone is following me. Then the last question that you have asked me is question number 49. The numbers are written out in 5 columns to make the following pattern. ठीक है जी. It is noticed that the products 2 into 8 is 16 and 3 into 7 is 21. 2 into 8 is 16 and 3 into 7 is 21 are both line column C5. Here are 16 or 21. Okay. The 4 numbers k, x, y, z are next to each other in the pattern as shown in the diagram. Using the patterns in the table above, express x in terms of k, y in terms of k and z in terms of k. अब नोट करें इन दोनों में एक का डिफरेंस है तो x इज k प्लस 1. आप सारी सीक्वेंस नोट कर लेना. हर किसी में यूं करके एक एक का फर्क चल रहा है और हर किसी में यूं करके 5 का फर्क चल रहा है. तो y विल बी k प्लस 5 एंड क्रॉस में 6 का फर्क चल रहा है. z इज k प्लस 6. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी. आई होप सबको समझ में आ गया. उसके बाद बोलता है सिंप्लीफाई xy minus kz. xy that is k plus 1 into k plus 5 minus k, z is k plus 6. So k plus 5 plus 1 k plus 5 minus k square minus 6k. K square plus 5k plus k plus 5 minus k square minus 6k. K square plus 6k plus 5 minus k square minus 6k. ये कैंसिल क्या बचा 5. Explain why x, y and kz lie in the same column. x, y और kz सेम कॉलम में क्यों लाई करते हैं? क्योंकि all numbers differ by 5. All numbers that differ by 5 are lying in the same column. चेक कर लें, ऑब्जर्व करें. हर वो चीज़ जिसमें 5 का फ़र्क है सेम कॉलम में लाई कर रहा है. सेम कॉलम 5 का फ़र्क. तो इस वजह से ये भी 5 का फ़र्क है तो सेम कॉलम में लाई करेगा. नेक्स्ट, the number k is in row n of column C2. Find an expression of k in terms of n. Find k in terms of n. अब आप नोट करें फर्स्ट टर्म जो है C2 की जो फर्स्ट टर्म है 3 है. C2 की फर्स्ट टर्म 3 है. कॉमन डिफरेंस 5 है. So Tn is a plus n minus 1d. Tn is 3 plus n minus 1 into 5. 3 plus 5n minus 5. 5n minus 2.
आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. सो दिस इज 5n-2. उसके बाद बोलता है बाय ऑल्सो एक्सप्रेसिंग नंबर्स x, y एंड z इन टर्म्स ऑफ n और अदरवाइज शो दैट बोथ प्रोडक्ट्स x, y एंड kz लाई इन कॉलम C1. ये जो आया है ये क्या आया है? x हमने देखा था k+1 है, तो x 5n-2+1 है. 5n-1 हो गया k x. y हमने देखा था k+5 है, तो y 5n-2+5 है, तो y 5n+3 हो गया. z हमने देखा था 5k+6 है, ये देख लें. सो k+6 है तो k is 5n-2+6, that is z is 5n+4. अग्रीड. अब आपसे बोल रहा है कि बाय ऑल्सो एक्सप्रेसिंग x, y, z इन टर्म्स ऑफ n, तीनों को इन टर्म्स ऑफ n बता दिया. शो दैट बोथ प्रोडक्ट्स x, y एंड kz लाई इन कॉलम C1. both products x, y and kz lie in column C1. अच्छा जी, कॉलम C1 जो है वो देखो क्या है. कॉलम C1 की फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है. सो Tn is a plus n-1d. Tn is 2 plus n-1d is 5. 2 plus 5n-5, that is 5n-3. ये कॉलम C1 में होने की शर्त है. कॉलम C1 में वही चीज़ें होंगी जो 5n-3 होंगी. अब आपको बोल रहा है कि शो करो कि x, y एंड kz, x, y and show that both the products x, y and kz lie in C1. x, y निकालें. 5n-1, 5n+3, 5n-1, 5n+3. So 5n+3 minus 1, 5n+3, 25n square plus 15n minus 5n minus 3, 25n square plus 10n minus 3, 25n square plus 10n minus 3 xy है. 5xy, the nth term, sorry, कह रहे by also expressing the numbers x, y, z in terms of n कर दिया. show that both the products x, y and kz lie in column C1. x, y and kz lie in column C1. कोई भी चीज़ C1 में अगर लाई करेगी तो उसको, कोई भी चीज़ अगर रो C1 में लाई करेगी तो वो इस पैटर्न में होनी चाहिए. 5n-3, 5n-3. अब जो x, y है, x is 5n-1, y is 5n+3. जो 5n-1 और 5n+3 है, दैट इज 25n स्क्वायर प्लस 10n-3. अब हम ये कैसे प्रूफ करें कि ये रो C1 में लाई कर रहा है? रो C1 में लाई कर रहा है, ये हम कैसे प्रूफ करें?
both lie in column C1. अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, 25n² प्लस 10n-3 is 5n-3. 25n² plus 10n-5n is 0. 25n² plus 5n is 0. 5n कॉमन निकाल लिया. n plus 5n plus 1 is 0. सेम नहीं, इस तरह तो प्रूफ नहीं हो रहा. x y कह रहे बाय ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द नंबर्स x y एंड z इन टर्म्स ऑफ n कर दिया. शो दैट बोथ प्रोडक्ट्स x y एंड k z lie in column C1. x y and k z lie in C1. 3 into n is 27. 8 into 4 is 32. अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ओके. एंड और हम इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि आप नोट करें कि प्लीज़ नोट करें ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, दैट kz is 3 into 9. kz is anything 3 into 9. 3 into 9 is 27. आप नोट करें 27 फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहे हैं. 8 into 4 चेक करें. 8 into 4 is 32. चेक करेंगे 32 कहाँ लाई कर रहे हैं. 27, 28, 29, 30, 31, 32. सो इसी तरह जब हम सीक्वेंस आगे बढ़ाते जाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फर्स्ट कॉलम में आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी फर्स्ट कॉलम में आएगा. हमने प्रूफ कर लिया. 3 into 9 27 होता है, देखिए फर्स्ट कॉलम में आ रहा है. 4 into 2 8 32 होता है, ये भी फर्स्ट कॉलम में आ रहा है. सो इस तरह प्रूफ हो सकता है. एन के थ्रू तो प्रूफ नहीं हो सक रहा क्योंकि ये सब चीज़ कैंसिल ऑफ हो रही है. सो हमें बोला था इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेस कर लो. हमने एक्स वाई जी सबको इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेस किया. एंड उसके बाद सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, शो दैट बोथ एक्स वाई एंड के जी लाइन इन कॉलम C1. एक्स वाई का मतलब है कि C2 और C3 का प्रोडक्ट और C3 और C2 का प्रोडक्ट एक्स वाई ये रहा और के जी ये रहा. हमें ये शो करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा. तो मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके प्रूफ कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम नॉट एबल टू प्रूव दिस थ्रू एन बिकॉज मैंने अभी प्रूफ करके आपको दिखाया सब कैंसिल हो रहा है. तो एन से तो ये प्रूफ नहीं होगा. एन से इसको प्रूफ करने की नीड भी नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू रियलाइज दैट के आपको के एक्स वाई और जी इन टर्म्स ऑफ एन बताना था, आपने बता दिया. उसके बाद आपको बोल रहा है कि हेंस और अदरवाइज शो दैट बोथ प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड के जी लाई इन कॉलम C1. तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. मैंने ये किया कि मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट 27 होता है, 3 into 9 27, और इन दोनों का प्रोडक्ट 4 into 8 32. ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि K और Z इस तरह हैं, C2 और C3, और XY इस तरह हैं, C3 और C2. इनके प्रोडक्ट लिए और चेक करते हैं इनके प्रोडक्ट कहाँ लाई करेंगे, किस कॉलम में लाई करेंगे. सो लेट्स आइडेंटिफाई. 21, 22, 23, 24, 25, 26 चेक कर लें. 27 आ गया. 28, 29, 30, 31, 32 चेक कर लें. 32 आ गया. दोनों फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहे हैं. सो हमेशा एक्स वाई और के जी का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा. आई होप दिस इज क्लियर. दिस मार्क्स द एंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपने मुझसे नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज में पूछे थे.